Good morning, Namaskar. Today we will discuss in this lecture we will discuss pin configuration of microprocessor 8085. Microprocessor 8085 is a 40 pin chip which operates on positive 5 volt power supply and 3 megahertz frequency. These 40 pins they are classified into different groups, and on the basis of these groups we will discuss these pins. You need not to remember pin number 1 is so and so, pin number 2 is so and so, pin number 3 is so and so, but you must remember what's the function of a particular pin and in which category this pin belongs to, right? So the microprocessor pin, that is, you can classify them as higher order address bus, then multiplexed address oblique data bus, then serial IO communication, signals. Also power supply and frequency. Frequency signals, then control signals, control and status signals, and then externally initiated signals. So these are the various categories in which we divide these 40 pins. Higher order address lines, multiplex address and data bus, serial IO communications के लिए, power supply and frequency के group, control signals, control and status signals, and externally or peripheral initiated signals. Right? So now we will discuss these signals as per these groups. The first group, that is higher order address bus, and the second group multiplex address oblique data bus. We will take these two groups simultaneously. Actually, microprocessor 8085, it is having 16 address lines and 8 data lines. So normally we require 16 pins for the address and 8 pins for the data. But instead of having these two different groups, what we did is we make only 16 pins, and इन 16 पिनों में से 8 पिनों को हमने डबल काम दे दिया. That means 8 pins, they will function in different ways at different time. So you can say out of the 16, 8 pins are time multiplexed. Time multiplex means they will do multiple function, and time multiplex means on the basis of time, certain time they will do that and certain time they will do that, right?
So these 16 pins, they are named as AD0 to AD7 and A8 to A15. So these 16 lines are there, and out of these 16 lines, these lines are the dedicated address lines, जिसको कि हम कहते हैं higher order address bus or address lines, and these lines, they are multiplexed lines. Multiplex means time multiplexed. That means certain time they will behave as A7 to A0, and at another time they will behave as D0 to D7. So certain time they will behave as the data bus, and another time they will behave as address bus, and hence the address bus that completes these 16 lines. Right? यहाँ पर टाइम मल्टीप्लेक्स का मतलब है कि certain time they will carry address and certain time they will carry data. किस time they will carry address और किस time they will carry the data? Actually what happens, here we have a term which is known as machine cycle. This is a term, machine cycle. Machine cycle means माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी से या पेरिफेरल से, मेमोरी से या आईओ से जो डाटा रीड कर रहा है या जो डाटा राइट कर रहा है, उस एक साइकिल को हम बोलते हैं मशीन साइकिल. दैट मीन्स इन जनरल यू कैन से टू एक्सेस ए पेरिफेरल. हियर एक्सेस का मतलब रीड करना या राइट करना. पेरिफेरल का मतलब मेमोरी या आईओ. सो मेमोरी से रीड करना या राइट करना, आईओ से रीड करना या राइट करना, ये जो साइकिल है, ये साइकिल मशीन साइकिल कहलाती है. और इस दौरान माइक्रो प्रोसेसर जो भी काम करता है, जो भी स्टेप उठाता है, उनको हमने सिंक्रोनाइज कर दिया सिस्टम क्लॉक के साथ. कि भी जो हमारा सिस्टम क्लॉक है, राइट, जो फ्रीक्वेंसी हम यहां दे रहे हैं, ये जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी हम यहां दे रहे हैं, इस क्लॉक फ्रीक्वेंसी की जो एक साइकिल है जिसको कि हम बोलते हैं टी स्टेट. तो एक टी स्टेट ये है. तो इस टाइप की टी स्टेट मिलकर के हमारी एक साइकिल बनाती है. इन जनरल a machine cycle requires a read and write operation requires normally 3 से लेकर के 3t स्टेट से लेकर के 6t स्टेट तक हो सकती है. कौन सी कैसी होगी वो आगे बात करेंगे. राइट. सो ये जो मशीन साइकिल है, इस मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर रीड और राइट करने के लिए मेमोरी से आईओ से हर एक टी स्टेट पे ये बता दिया गया जाता है कि इस टाइम माइक्रो प्रोसेसर ये करेगा, इस टाइम माइक्रो प्रोसेसर ये करेगा, इस टाइम माइक्रो प्रोसेसर ये करेगा. राइट. तो ये जो टी स्टेट है इसको हम डिवाइड कर देते हैं मशीन साइकिल की T1, T2, T3 एक्सेट्रा. राइट. अब इस मशीन साइकिल की जो पहली टी स्टेट है, द फर्स्ट टी स्टेट of each and every machine cycle. During this T state, these lines they behave as address line. And during the next T states, during these T states, these lines they will behave data bus. So multiplex होगी. इस टाइम ये इस तरह काम करेंगी, इस टाइम ये इस तरह काम करेंगे. राइट. सो दीज लाइंस, और ये काम ये किया क्यों? ये सिर्फ इसलिए किया कि हमारी जो नंबर ऑफ पिंस है वो कम से कम हो.
हमें कम से कम पिनों में अपना काम चलाना था, जिससे कि हमारा चिप का साइज जो है वो छोटे से छोटा रह सके। देयर इज नो अदर पर्पज फॉर दैट, राइट। नो डाउट जब हम यहां से बाहर आ जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के बाहर आ जाते हैं, बाहर आने के बाद हम यहां पर कुछ सर्किट वगैरह लगा करके इन लाइनों को डाटा लाइन और एड्रेस लाइन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। बाहर आने के बाद यहां पर ये मल्टीप्लेक्सिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई कि नंबर ऑफ पिन्स मिनिमम रहे। जब इससे बाहर आ गए, बाहर आने के बाद हमने एड्रेस लाइन डाटा बस अपनी अलग कर लेंगे और एड्रेस बस अपनी अलग कर लेंगे। देन दे वर सेपरेट लाइंस, क्योंकि उसके बाद हमें इसकी पिनों का कोई लेना देना नहीं है। So to keep the number of pins as minimum as possible, we done the multiplexing, right? Once we comes out, we demultiplex these lines and make them separate address and separate data bus. Okay, so these are these lines. नेक्स्ट इज, चलिए सीरियल कम्युनिकेशन। जहां तक बात है, दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, आपको मालूम है। एक सीरियल कम्युनिकेशन होता है, एक पैरेलल कम्युनिकेशन होता है। पैरेलल कम्युनिकेशन का मतलब है एक साथ जितने भी बिट है एक साथ हम उतनी डाटा लाइन पर उनको भेज दें। और सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब जितनी बिट है उनको एक ही लाइन के थ्रू भेजेंगे, पर वन बाय वन भेजेंगे। पैरेलल कम्युनिकेशन जनरली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है और सीरियल कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है। हाँ, यहाँ से हमें बॉम्बे लाइन भेजनी है तो डाटा 8 डाटा लाइन भेज, तो 8 तार यहाँ से बॉम्बे तक थोड़ी हम खींचेंगे। इट विल कॉस्ट एनॉर्मस कॉस्ट हो जाएगी। उससे बेहतर तो ये है कि एक तार खींच दे, उस तार के थ्रू 8 बिट को वन बाय वन डाटा को सीक्वेंशियली भेज दे जाए। सो जहाँ तक बात है पैरेलल डाटा कम्युनिकेशन के लिए, तो भाई ये डाटा बस हमारी पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए थी। अब अगर ये सीरियल कम्युनिकेशन अगर हमें कराना हो तो दैट प्रोविजन इज देयर इन 8085 एंड फॉर दैट देयर आर टू सिग्नल्स, वन इज नोन एज सीरियल इनपुट डाटा, another is known as serial output data. These are two pins. One is serial input data, जैसे कि नाम बताया जा रहा है। इस पिन के थ्रू वन बाय वन बिट अंदर जाएंगी और ऐसे ही सीरियल आउटपुट इसके थ्रू वन बाय वन बिट अंदर बाहर आएंगी। ये एक तरह से क्या है कि जो हमारा इसके अंदर जो अकोमुलेटर होता है, एक रजिस्टर होता है, इनफैक्ट एक क्या दो रजिस्टर होते हैं। दे आर समथिंग लाइक serial in, parallel out, another is parallel in, serial out. ये दो रजिस्टर होते हैं। These two registers they are connected with accumulator. ये हमारा accumulator है। तो accumulator एक तरीके से ये कह लीजिए, एंड सीरियल इन इस लाइन के साथ हमारा SID पिन जुड़ी है और इस तरीके से ये हमारा SOD पिन जुड़ा हुआ है, क्योंकि अंदर जो काम होगा वो 8 बिट में होगा। अक्यूमुलेटर का डाटा इस लाइन यहाँ इस रजिस्टर में आ जाएगा ना। जब हमें सीरियल इनपुट करना है तो ये सीरियल इन इस बिट बाय बिट ये 8 बिट का डाटा तैयार होगा। सीरियली इन हो गया 8 बिट का डाटा, और उसके बाद वो 8 पूरा बिट होने के बाद वो पैरेलल आउट वो कहाँ करेगा? अक्यूमुलेटर पे। और अगर ऐसे ही बाहर भेजना हो तो यहां से इस रजिस्टर से डाटा लिया जाएगा, पैरेलल इन, अक्यूमुलेटर में 8 बिट का डाटा भेज दिया, सीरियल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल इन, ये पैरेलल इन, ये अक्यूमुलेटर से डाटा यहां आ गया 8 बिट का और इसको सीरियली आउट भेज दिया। So these are two pins which are available in 885. Mind it, these two pins, these serial communication pins,
they are not available in any of the further higher upcoming microprocessors. There, this responsibility of serial communication is given to a chip, programmable chip, which is known as UART or 8251 serial parallel UART, that is Universal Synchronous Asynchronous ट्रांसमीटर रिसीवर. एक चिप है 8251. फर्दर माइक्रो प्रोसेसर में ये सारी जिम्मेदारी सीरियल कम्युनिकेशन की उस चिप को दे दी गई. माइक्रो प्रोसेसर यहां से डाटा लाइन से डाटा लेगा या डाटा देगा उस चिप को, और वो चिप जिस तरीके से भी सीरियली भेजना है, सिंक्रोनसली भेजना है, एसिंक्रोनसली भेजना है, दैट ऑल थिंग इज डन बाय दैट चिप. दैट इज एक तरीके से 8251. ये यहाँ से डाटा लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, डाटा बस के साथ D0 to D7 के साथ. और ये 8251 जिसको यूजार्ट भी कहते हैं, USART भी कहते हैं, ये इस यूजार्ट को दे दिया. एक तरह से इसने अपने फर्दर माइक्रो प्रोसेसर्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक शेयर कर ली, एक और मैनेजर लगा दिया. उस मैनेजर का काम था कि वो सीरियल कम्युनिकेशन को समझेगा, वो सीरियल कम्युनिकेशन को हैंडल करेगा. तो ये चिप जो है सीरियली और पैरेलल डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए ये चिप करेगी, और ये डिफरेंट मोड में कर सकती है. दैट वी विल डिस्कस समवेयर इन सम लेक्चर लेटर ऑन. सो इट इज सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, एंड इसलिए फर्दर माइक्रो प्रोसेसर में सीरियल कम्युनिकेशन के लिए सीरियल इनपुट या सीरियल आउटपुट के लिए कोई पिन नहीं होती. देन कम्स कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स. In 8085 there are some signal, control signal, that is RD bar, WR bar, IO/M bar and ALE. These four signals, they are known as control signal, and S1 and S0, they are known as status signals. What these signals do? Read, that is read signal. Whenever microprocessor wants to read, कहाँ से? कहीं से भी. कहीं से मतलब मेमोरी से या आईओ से, ऑब्वियस है. सो जब कभी भी उनसे रीड करना चाहता है तो वो इस सिग्नल को 0 कर देगा. रीड नहीं करना तो इसको 1 कर देगा. जब कभी भी वो राइट करना चाहता है, किस पे? आउटपुट पोर्ट पे या मेमोरी में, तो वो इसको एक्टिवेट कर देगा. एक्टिवेट करने का मतलब इसको 0 कर देगा, इस पिन को. ये रीड बताता, रीड करना चाहता, राइट बताता, राइट करना चाहता, पर कहां से? दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन बाय दिस टू. दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर पिन. ये पिन बताती है कि ये जो रीड या ये जो राइट ऑपरेशन माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म करना चाहता है, ये किससे करना चाहता है, आईओ से या मेमोरी से. ये पिन भी मल्टीप्लेक्स्ड है. अब ये पिन अगर ये रीड और राइट ऑपरेशन आईओ से करना चाहता है तो ये इस आईओ को एक्टिवेट कर देगा, दैट मीन इट विल मेक इट 1. और अगर ये रीड और राइट मेमोरी से करना चाहता तो वो इस पिन को 0 कर देगा. सो दीज 3 पिन्स combinedly they generate the 4 control signal, that is memory read bar, memory write bar, IO read bar and IO write bar. These are the 4 control signals जो कि ये 3 सिग्नल से जनरेट किए जाते हैं. एंड इट इज वेरी सिंपल टू बी जनरेटेड बाय दिस. क्या करना होता है? एक सिंपल लॉजिक सर्किट यहां पर होता है. वो लॉजिक सर्किट की हेल्प से हम ये सिग्नल जनरेट कर सकते हैं. जैसे क्या है वो लॉजिक सर्किट? दैट इज ये OR गेट है. किताबों में देखोगे तो आपको ये बबल्ड NAND गेट मिलेगा. इफ यू सी इन द बुक्स लिटरेचर तो आपको ये बबल्ड NAND गेट मिलेगा. दैट इज समथिंग लाइक, ये बबल्ड NAND गेट का मतलब NAND गेट, ये बबल्ड NAND गेट मिलेगा बुक्स में इन चारों की जगह, एक की जगह. बट जैसे कि आपको मालूम है ये A है, ये B है, तो इसके ये A बार इसके अंदर गया, ये B बार इसके अंदर गया, और इसके अंदर बाहर क्या आया? A बार इंटू B बार होल बार. एंड डी मॉर्गन थ्योरम लगाते तो हम ये क्या होता है? A बार के ऊपर बार प्लस B बार के ऊपर बार, एंड इट इज नथिंग बट A प्लस B. सो मैं सीधे सीधे ये ले रहा हूं. अब इनमें से जो भी आउट एट ए टाइम
सिर्फ एक जीरो आएगा, बाकी तीन हाई आएंगे। तो जो जीरो आएगा इसका मतलब वो ऑपरेशन होगा। जैसे मान ली, अच्छा ये 4 में 2 से तो और ऑपरेशन, 2 से तो रीड ऑपरेशन होगा, 2 से राइट ऑपरेशन होगा, ऑब्वियस है। मेमोरी रीड एंड आईओ रीड, मेमोरी राइट एंड आईओ राइट। सो 2 में से मेमोरी, 2 से रीड और 2 से राइट। सो 2 में रीड चला गया, इसमें चला गया, और भाई ये इसमें चला गया। 2 में राइट चला गया, इसमें चला गया बचे हुए में, और इसमें चला गया। सिमिलरली 2 मेमोरी संबंधित होंगे ऑपरेशन, 2 आयु संबंधित होंगे। तो 2 में सीधा चला जाएगा, 2 में नोट गेट के थ्रू चला जाएगा। मतलब ये लिया, अब किन 2 में सीधे जाएगा, किन 2 में नोट गेट के थ्रू जाएगा? एक रीड में, एक राइट में, एक रीड में, एक राइट में। सो एक रीड और राइट ये मैंने भेज दिया इन 2 में, ठीक है, और ये भेज दिया मैंने इन 2 में, ठीक है। 2 में रीड के थ्रू चला गया, 2 में उसमें ऐसे चला गया। अब देखिए, सपोज माइक्रो प्रोसेसर वांट्स टू रीड, तो इसको 0 करेगा। जब रीड हो रहा तो राइट नहीं होगा, सो 0 हो गया, 1 हो गया। मान लीजिए वो कहता है मेमोरी से रीड करना चाहता हूँ, मेमोरी से रीड करने का मतलब ये 0 हो गया। मेमोरी इज एक्टिव लो, आईओ इज एक्टिव हाई। सो व्हाट विल हैपन, ये 0 यहाँ गई, राइट, ये 1 यहाँ गया, और ये 1 यहाँ गया। ये 0 यहाँ थी, तो ये 0 यहाँ गई, और ये 0 यहाँ गई। यहाँ 0 थी तो यहाँ 1 हो गया, इसका मतलब ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, राइट। ये 0 थी तो 1 1 1, 1 0 1, 1 0 1, एंड 0 0 0। सो क्या ऑपरेशन बना? मेमोरी रीड ऑपरेशन। सो दिस विल बी योर MEMR बार। सिमिलरली अगर माइक्रो प्रोसेसर wants to read from IO, रीड फ्रॉम आईओ, तो आईओ से है इसका मतलब ये पिन 1, ये पिन का मतलब ये 0, ठीक है। ये 1 का मतलब यहां पर 1, और इस 1 का मतलब है यहां पर भी 1, ये 1 था ही, यहां पर 0, यहां 0 और यहां 0। सो क्या लिख रहा है ये? आईओ आर बार। Similarly, you can find that it is MEMW bar and it is IOW bar. So this way, these 3 control signal pins, they generate these 4 control signal externally. यहाँ तो हमने रख दिया, नंबर ऑफ पिन कम करने के लिए इसको मल्टीप्लेक्स बना दिया। बाहर आने के बाद ये हमने अलग अलग कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट कर लिए, राइट। देन कम्स द ALE सिग्नल। ALE is एड्रेस लैच अनेबल, एड्रेस लैच को अनेबल करने वाला सिग्नल। जब कभी भी माइक्रो प्रोसेसर मल्टीप्लेक्स लाइनों पे एड्रेस भेजता है, दैट मीन्स जब माइक्रो प्रोसेसर इन मल्टीप्लेक्स लाइनों पे, जिस पे की जो कि टाइम मल्टीप्लेक्स्ड है, सर्टन टाइम्स के लिए माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस भेजता है, दूसरे टाइम के लिए डाटा भेजता है। जब कभी भी इन लाइनों पे एड्रेस भेजता है, जब कभी भी इन लाइनों पे एड्रेस भेजता है, तो वो ALE पिन को हाई करके भेजता है। अब क्योंकि ये हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी थी, क्लॉक के साथ मशीन साइकिल में किया हुआ है, और हमने देखा ड्यूरिंग द फर्स्ट T स्टेट, T1 टाइम के लिए माइक्रो प्रोसेसर, ये जो मल्टीप्लेक्स लाइन थी ये एड्रेस लाइन की तरह काम करती है ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब जो मल्टीप्लेक्स लाइन थी वो A0 से A7 की तरह काम करती है। तो दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जब कभी भी माइक्रो प्रोसेसर इन लाइनों पर एड्रेस भेजता है, वो ALE को हाई कर देता है। तो ALE कितनी देर के लिए हाई होगी? ALE इतनी देर के लिए हाई होगी जब इन लाइनों पर एड्रेस है। So whenever microprocessor sends a valid address on the multiplex line during the T1 T state of
a machine cycle, at that time microprocessor also make the ALE signal as 1 हाई कर देगा। जब इन लाइनों पर डाटा कैरी करेगा, जब इन लाइनों पर डाटा कैरी करेगा, दैट मीन्स T2 T3 एक्सेट्रा पे, उस टाइम ये ALE सिग्नल लो होगा, राइट। दिस ALE सिग्नल, एड्रेस लैच अनेबल सिग्नल, इज यूज्ड to demultiplex the multiplexed lines, राइट। जो हमने बात कही थी कि ये जो लाइनें हैं बाहर आने के बाद, once we comes out from here, these lines they are demultiplexed and we make separate address line as well as separate data line। ये कैसे होता है, ये आप इससे ऐसे समझ सकते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप है, मान लीजिए ये डी फ्लिप फ्लॉप है, ये डी फ्लिप फ्लॉप है, ये इसका आउटपुट है, ये इसका इनपुट है, ठीक है। ये आउटपुट है, ये इनपुट है। अगर मान लीजिए ये मल्टीप्लेक्स लाइन AD0 लाइन को मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूं, जो कि एड्रेस लाइन की तरह काम करेगी और जो कि डाटा लाइन की तरह काम कर रही है, राइट। तो और यहां पर एक सिग्नल है हमारा ALE, इस ALE सिग्नल को मैं इसके ट्रिगर में दे दूं। अब क्या कहता है माइक्रो, अभी हमने क्या पढ़ा कि ड्यूरिंग द फर्स्ट T1 T स्टेट ये लाइनें एड्रेस कैरी करती है, दैट मीन्स दीज लाइन्स दे आर कैरिंग द एड्रेस, दैट मीन्स दिस लाइन इज कैरिंग A0। उसके बाद ये लाइन डाटा कैरी करेंगे। अब ये A0 है, तो जिस टाइम ये AD0 को A0 बनाकर भेज रहा है, उस टाइम ये ALE को हाई भी भेज रहा है। तो ALE हाई होते ही, ये लॉजिक 1 होते ही, यहाँ पर ये इसको, ये हाई होते ही ये क्या करेगा, इस फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर कर देगा। ये हमारा ट्रिगर पॉइंट है, क्लॉक है, दिस क्लॉक इज अप्लाइड हियर, सो इट विल ट्रिगर इट। सो वट एवर डी फ्लिप फ्लॉप पे क्या होता है कि वट एवर इज अवेलेबल एट द डी इनपुट आफ्टर द क्लॉक, आफ्टर द ट्रिगर, दिस D will be available at Q, that means this A0 will be available here। और उसके बाद जब ये ट्रिगर खत्म हो गया, जब ये ट्रिगर खत्म हो गया तो क्या होगा, तो ये होगा कि वट एवर इज अवेलेबल एट द आउटपुट इट विल रिमेन एट द आउटपुट, चाहे वो यहां से हटा दिया। यहां पर जो कुछ है वो अब यहां पर कब पहुंचेगा, जब दोबारा से इसको ट्रिगर किया जाएगा। इट्स सिंपल डिजिटल। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस डी फ्लिप फ्लॉप ने इस A0 को लैच कर लिया, स्टोर कर लिया। अब ये यहां से खत्म भी हो गया तो भी यहां A0 है। खत्म होने का मतलब क्या है, एट T2 ये खत्म हो गया, तो ये लाइनों पर अब A0 की बजाय इन लाइनों पर क्या कैरी करेगा, इन लाइनों पर डाटा कैरी करेगा। दैट मीन्स नाउ दिस लाइन इज D0, बट ये D0 तो यहां जाएगी ही नहीं क्योंकि क्लॉक डिसेबल्ड है। सो दिस D0 इज अवेलेबल, हमें यहां पर अवेलेबल है। दिस D0 इज या तो जा रही है या ये आ रही है। सो एक तरह से कह दीजिए नाउ दिस बिकम्स D0। सो एक तरीके से कह सकते हैं कि इस डी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से ये लाइन A0 बन गई। कब, परमानेंट बनी, आई थी एक क्लॉक साइकिल के लिए, बट इसने इसको स्टोर करके रख लिया और उसके बाद ये D0 पर अवेलेबल है, ये डाटा बस बन गई। सो दिस वे दिस डी फ्लिप फ्लॉप इट विल यूज टू डीमल्टीप्लेक्स द मल्टीप्लेक्स लाइन। हमारे पास तो 8 लाइन है, वी आर हैविंग 8 लाइन्स, सो 8 सच flip flops they are arranged, 8 such flip flops they are arranged in a latch IC, जिसको बोलते हैं हम लैच IC 8282। इस लैच IC में एक नहीं 8 डी फ्लिप फ्लॉप बने हैं और उन 8 डी फ्लिप फ्लॉप के साथ हमने अपनी 8 डाटा लाइन, मल्टीप्लेक्स डाटा लाइन और एड्रेस लाइन ये इसके साथ कनेक्ट कर दी। सो यहां से हमें 8 एड्रेस लाइन A0 to A7 मिलेगी, एक
एक फ्लिप फ्लॉप से, एक फ्लिप फ्लॉप से इसके अंदर कितनी है, 8 फ्लिप फ्लॉप है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टल। 8 मतलब ऑक्टल लैच। और इस एएलई, ये एएलई जो है इस ऑक्टल लैच को क्या कर रही है, इस ऑक्टल लैच को अनेबल कर रही है। ये क्या है, लैच है। तो कौन सी लैच, क्या लैच करती है, एड्रेस लैच करती है, हेंस इट इज नोन एज एड्रेस लैच। एंड सो दिस सिग्नल इज नोन एज एड्रेस लैच अनेबल, जो इस लैच अनेबल सिग्नल पर कनेक्ट किया जाता है। So this way, this octal latch is used to demultiplex the multiplex lines. ये हमारी डाटा बस हो गई, right? So this way, these lines they are demultiplexed once it comes out, and this demultiplexing is done with the help of this ALE signal. Then comes S1 and S0. S1 and S0, these two signals they are known as status signals. They will define whether microprocessor is reading or writing or fetching. और कुछ नहीं कर रहा। S1 and S0 के 4 कॉम्बिनेशन है, 00, 01, 10 and 11. When it is 00, inactive. Microprocessor is not inactive. It is neither reading nor writing. इसका मतलब कुछ नहीं कर रहा। ये रीड को बताएगा, ये राइट को बताएगा और ये फैच को बताएगा। अब आप मैं पूछता हूं, व्हाट इज फैच? फैच का मतलब क्या होता है, रीड करना ही होता है। मेमोरी से डाटा फैच करो, इसका मतलब मेमोरी से डाटा रीड करो। तो व्हाट इज रीड? ये भी तो रीड है। Then what is difference between a memory read and a fetch operation? We have word MEMR, that is memory read. Another word that is fetch. So what is the difference? There is no difference at all theoretically, but practically there is a difference. As we know that an instruction that is made up of opcode and operand, दो पार्ट होते हैं, ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड। किसी भी इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट होते हैं। अगर माइक्रो प्रोसेसर इस ऑप कोड को मेमोरी से पढ़ रहा है देन इट इज फैच, और अगर इस ऑपरेंड को पढ़ रहा है देन इट इज मेमोरी रीड। सो दिस इज ए सिंपल डिफरेंस बिटवीन द टू। इफ इट इज रीडिंग फ्रॉम द मेमोरी एंड व्हाट इट इज रीडिंग, it is reading the opcode, then it is fetch, and if it is reading an operand from the memory, then it is simply memory read operation. So there are 4 these control signals, status and control signals. ये कौन कौन से हुए? Read, microprocessor wants to read. Write, microprocessor wants to write. कहां से, आईओ से या मेमोरी से? ALE. And status signal S1 and status signal S0. So these are status and control signals. Then comes, oh sorry, status and control signals ये यहां पर लिखना था मैंने। These are status and control signals। चलिए, then comes, ये सिग्नल कौन से थे हमारे? एक्सटर्नली और पेरिफेरल इनिशिएटेड सिग्नल। एक्सटर्नली और पेरिफेरल इनिशिएटेड सिग्नल वे सिग्नल जो कि बाहर से इनिशिएट किए जाते थे, and microprocessor wants to carry them. In this category there are 12 signals, and out of the 12 signal, 6 signals are related to the interrupt. That is trap, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR and INTAR. With the help of these 6 interrupt related signals, 8085 can generate 5 different interrupts. What is an interrupt? Interrupt is an operation
in which microprocessor is asked to suspend its current operation. करंट ऑपरेशन को सस्पेंड करने के लिए कहता है और कहता है कि इस करंट ऑपरेशन को सस्पेंड कर दो और कोई दूसरा इमरजेंसी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो। माइक्रो प्रोसेसर करंट प्रोग्राम को सस्पेंड कर देगा, ख़त्म नहीं करेगा, सस्पेंड करेगा, दूसरे प्रोग्राम पे जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस आके अपने मेन प्रोग्राम को रिज्यूम करेगा, जहाँ छोड़ के गया था वहाँ से आगे करेगा। दिस ऑपरेशन इज नोन एज इंटरप्ट ऑपरेशन। Interrupt can be hardware, interrupt can be of software. For hardware interrupts, we are having these pins in 8085. For software interrupt, we are having instruction that is known as RST. वो आगे बात करेंगे। RST 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 8 software interrupt instructions that we will discuss later on. Right now, these are the hardware interrupts. Interrupts can be maskable and non-maskable. Maskable मतलब which can be avoided, जिनको डिनाई किया जा सकता है कि भाई दूसरा प्रोग्राम जरूरी नहीं है, मैं दूसरा प्रोग्राम नहीं करता, मैं तो इसी ये मेरा प्रोग्राम करंट प्रोग्राम इज मोर इम्पोर्टेंट, आई विल कंटिन्यू विद दिस प्रोग्राम, आई विल नॉट गो टू द आई विल नॉट सस्पेंड दिस प्रोग्राम एंड गो टू अनदर प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट दैट, नो आई विल नॉट डू दैट। या मैं पहले इसको करूंगा उसके बाद उसको करूंगा। That means either deny that program or suspend for the time being kept pending that program, right? So और दूसरा कि जो इतना इमरजेंट हो जिसको कि करना ही करना पड़े, that is non-maskable. So there are two types, maskable and non-maskable. Maskable which can be avoided, which can be masked. Non-maskable which cannot be avoided and which cannot be masked. Trap is a non-maskable interrupt. Non-maskable interrupt है ये. These are maskable interrupt. And this is handshake mode of interrupt. नॉन मास्क, इसको कई बार मास्केबल इंटरप्ट है, कई बार प्रायोरिटी इंटरप्ट भी बोल देते हैं, प्रायोरिटी इंटरप्ट। इन प्रोग्राम की प्रायोरिटी जो है, दिस यू कैन से दिस इज द प्रायोरिटी। एक बार एक साथ एक से ज्यादा इंटरप्ट आ जाए तो माइक्रो प्रोसेसर पेसोपेस में पड़ जाएगा, सस्पेंस में पड़ जाएगा, किसको करूं किसको ना करूं, सभी को तो कर नहीं सकता एट ए टाइम, एक को ही करेगा। सो उसकी एक प्रायोरिटाइज वो लिस्ट बनाता है कि किसको करना है किसका नहीं। इस पिन पर जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई हुई है दैट विल हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसके बाद इसकी प्रायोरिटी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। ये तो भाई प्रायोरिटी की बात ही नहीं है, तो करना है तो रिक्वेस्ट भेजेगा, उसको एक्सेस करेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेगा। सो दीज आर प्रायोरिटी इंटरप्ट भी कहलाती है, इनकी प्रायोरिटी ये है। इंटरप्ट कैन बी लेवल ट्रिगर्ड, इंटरप्ट कैन बी एज ट्रिगर्ड। एज का ट्रिगर्ड का मतलब जैसे उसमें पल्स आई, उसकी राइजिंग एज के साथ एक बार पल्स आ गई तो वो इंटरप्ट एक्सेप्ट हो जाए। लेवल ट्रिगर्ड का मतलब कि भाई वो लेवल जब तक वो इंटरप्ट है तब तक उस लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। दिस इंटरप्ट इज एज ट्रिगर्ड। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को ये एज मिली, उसके बाद बेशक ये यहां से खत्म हो जाए, माइक्रो प्रोसेसर उसको इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज एज वेल एज लेवल ट्रिगर्ड। दिस इज लेवल ट्रिगर्ड, दिस इज नॉट एज ट्रिगर्ड, दिस इज आल्सो एज ट्रिगर्ड, दिस इज आल्सो एज ट्रिगर्ड, no sorry, level triggered. So these are the 6 pins through which interrupts are. Mind it, ये प्रोग्राम नहीं है, ये बताते हैं कि इंटरप्ट आ गया। जैसे मान लीजिए मेरे फ़ोन की घंटी बज गई, तो जो घंटी है, जो बैल है, वो मेरे को
बता रही है कि कोई इमरजेंसी काम आ गया। क्या काम आया वो तो जब मैं फ़ोन को जाकर सुनूंगा फ़ोन से पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि भाई हॉस्पिटल में जो नर्सिंग स्टाफ के यहाँ बल्ब लगे होते हैं, एलईडीज लगी होती है, किसी पेशेंट को रूम में किसी की सर्विस चाहिए तो वो वहाँ से अपना बेल दबाता है तो वहाँ पर लाइट ब्लिंक करने लगती है, तो वो उसको देख करके, लाइट को देख करके वो समझ जाती है नर्सिंग स्टाफ कि भाई फलाने रूम में, उस रूम में मेरी सेवाएं रिक्वायर्ड है, तो वो ना यहाँ का काम छोड़ करके सीधे दौड़ के वहाँ जाएगी। सो वो जो बल्ब टिमटिमा रहा है या जो बेल बोल रही है वो आपको बता रहा है कि आपकी सेवाएं रिक्वायर्ड है। क्या सेवा रिक्वायर्ड है वो तो जब उसको जा करके क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना वो तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। ठीक है, next two signals are hold and HLDA. Hold is hold request, HLDA is hold acknowledgement. Hold is it is a request to the microprocessor to suspend its current operation. Mind it, यहाँ तक बात interrupt वाली ही है. It is a request to the microprocessor to suspend its current operation. इससे आगे की बात में फर्क आ जाएगा। क्या? And release the buses so that some another competent bus master can use those buses. Microprocessor will do that. That means if it is microprocessor, ये इसकी बसेज है, एड्रेस बस और डाटा बस। ठीक है, तो अब ये इसको माइक्रोप्रोसेसर को होल्ड सिग्नल मिला तो माइक्रोप्रोसेसर इन बसेस से अपना कंट्रोल हटा लेगा। एक्चुअली होता क्या है, आई विल ड्रॉ इन ए मोर बेटर वे। ये मान लीजिए मेमोरी है, ये मान लीजिए आयोस है, ये मेमोरी के साथ हमारी बस है कनेक्ट की हुई है, ये आयो के साथ भी हमारी बस कनेक्ट की हुई है। ठीक है, एड्रेस बस भी है, डाटा बस भी है, नहीं? तो अब नॉर्मली क्या होता है कि हम आयो से मेमोरी पे, मेमोरी से आयो पर डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्या होगा, मेमोरी से डाटा यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, या यहाँ का डाटा यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, एंड इट टेक लॉट ऑफ टाइम, इट टेक लॉट ऑफ टाइम। तो क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं हम डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर, ये डीएमए कंट्रोलर क्या करती है, ये इन बसेस को हैंडल कर सकती है, और जब इसको ज़रूरत पड़ती है तो ये इसको होल्ड भेजती है। होल्ड का मतलब ये डीएमए कंट्रोलर को ये बसेस चाहिए जो कि इसके कंट्रोल में थी। तो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को ये रिक्वेस्ट मिलती है, माइक्रो प्रोसेसर अपना करंट ऑपरेशन परफॉर्म करना छोड़ देता है और वो यहाँ से इन बसेस से अपना कंट्रोल हटा लेता है। इट रिलीज दीज बसेस, कंट्रोल हटा लेता है, और उसके बाद वो होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल जनरेट करता है कि आपकी होल्ड रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज कर ली। इस होल्ड एक्नॉलेज को होने के बाद ये जो डीएमए कंट्रोलर है, नाउ ये इन बसेस का बस मास्टर बन जाता है। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डीएमए कंट्रोलर कैन इजीली ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम मेमोरी टू द आयो एंड आयो टू द मेमोरी, बिना माइक्रोप्रोसेसर 88 माइक्रोप्रोसेसर के इंटरवेंशन के। एंड दिस वे द डाटा ट्रांसफर इज वेरी फास्ट, और इसलिए इनवेरिएबली कोई भी मेमोरी और आयो डिवाइस जो है डीएमए के थ्रू इंटरफेस होती है, डीएमए कंट्रोलर के थ्रू। इसका नंबर है 8257। दिस इज नोन एज डीएमए कंट्रोलर। सो होल्ड एंड होल्ड एक्नॉलेज आर द सिग्नल्स which are
use to ask the system bus from the microprocessor, right? So hold is an operation in which microprocessor is asked to suspend its current operation and release the buses so that the competent bus master, जो इसने की hold भेजी है, can access those buses and make the data transfer. माइक्रो प्रोसेसर को जैसे ही होल्ड मिलता है वो करंट ऑपरेशन को सस्पेंड कर देता है, अपना कंट्रोल बसेस से हटा लेता है और HLDA सिग्नल भेज देता है, इंडिकेट करते हुए कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज कर लिया. देन कम रीसेट. रीसेट इज रीसेट करना. माइक्रो प्रोसेसर में दो सिग्नल है, रीसेट इन एंड रीसेट आउट. दो सिग्नल है, रीसेट इन एंड रीसेट आउट. रीसेट इन जो कि माइक्रो प्रोसेसर में जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए. रीसेट आउट इज विच इज कम्स आउट फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर टू रीसेट द पेरिफेरल डिवाइसेस और अदर डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू इट. So it is are used to reset the system. Then there is clock out. एक सिग्नल है clock out. No doubt clock frequency is given through this x1 and x2. And अगर सिस्टम के अंदर और भी कोई है जो कि फ्रीक्वेंसी जिसको चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो या तो उसके लिए वहाँ पर दोबारा से फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगाया जाए या क्या करें कि भाई जो फ्रीक्वेंसी माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा है उसको यहाँ से इस पिन के थ्रू हम आउटपुट में ले लें. सो दिस थ्रू दिस माइक्रो प्रोसेसर वी कैन गेट द फ्रीक्वेंसी एट विच माइक्रो प्रोसेसर इज वर्किंग ऑन. सो इट इज क्लॉक आउट. इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग, वन सिग्नल रेडी. रेडी इज शोज it is used to synchronize the slower peripheral with the microprocessor. What that mean? You can take it an example. मान लीजिए मैं और आप, मैं बॉल फेंक रहा हूँ, आप बॉल कैच कर रहे हो, ठीक है. मैं बहुत फास्ट फेंकने लगूँ, आप स्लो हो तो क्या करोगे? सम ऑफ द बॉल्स दे विल मिस. सेम इज हियर. माइक्रोप्रोसेसर इज वेरी फास्ट. सपोज द आउटपुट डिवाइस इज स्लो. माइक्रोप्रोसेसर डाटा भेज रहा है और अब वो नहीं उसको गैदर कर पा रहा है तो क्या करेगा? बॉल के प्रैक्टिस के साथ क्या करेंगे हम? आप कहोगे कि सर जब तक मैं यस ना बोलूं तब तक बॉल नहीं फेंकना. तो क्या हो गया कि भाई आपका जो ये यस वर्ड है इट बिकम्स समथिंग लाइक ए सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन टू ऑफ अस. मैंने बॉल फेंकी, आपने कैच की. कैच करने के बाद मैं बॉल फेंकने के बाद मैं रुक गया, आपने बॉल पकड़ ली. फिर जब पकड़ ली फिर आपने कहा यस. आपके यस कहते मैंने दूसरी फेंक दी. फिर मैं रुक गया, आपने दूसरी पकड़ी. फिर आपने कहा यस. दैट मीन्स जब तक आप यस नहीं कह रहे मैं बॉल नहीं फेंक रहा हूँ. सो इसका मतलब है कि मैंने अपनी स्पीड को स्लो कर दिया क्योंकि आपकी स्पीड कम थी. सिंक्रोनाइज करने के लिए हमने क्या बीच में यूज किया? ये यस वर्ड. सेम इज दिस सिग्नल रेडी सिग्नल. Whenever microprocessor is interfaced with slower peripheral, that peripheral is interfaced with the help of ready pin. What happens actually? ये माइक्रोप्रोसेसर है, ये आउटपुट डिवाइस. नॉर्मली डाटा ट्रांसफर हो रहा है इन आउटपुट डिवाइस के थ्रू इसमें. पर अगर ये स्लो है तो ये क्या करेगा? मान लीजिए डाटा भेज रहा है, ये स्लो है तो इस आउटपुट डिवाइस ने क्या किया? माइक्रो प्रोसेसर को इस रेडी पिन के साथ कनेक्ट कर दिया. अब जैसे ही रेडी पिन पर 1 आएगा माइक्रो प्रोसेसर डाटा भेज देगा. डाटा भेजने के बाद वो वेट स्टेट में चला जाएगा. जब कब तक? जब तक कि दोबारा ये 1 नहीं भेज देता. दोबारा भेज दिया तो दोबारा ट्रांसमिट कर दिया, फिर वेट स्टेट में चला गया, तीसरी बार भेजा फिर हुआ. सो दिस वे दिस आउटपुट इज इंटरफेस्ड विद दिस माइक्रो थ्रू द रेडी पिन, राइट. सो दीज आर द वेरियस सिग्नल्स विच आर अवेलेबल इन 8085. यहाँ पर ये रह गया था
VCC पॉजिटिव 5 वोल्ट पर हम लगाते हैं और ये ग्राउंड है, सो पॉजिटिव 5 वोल्ट पर काम करते हैं। यहाँ पर X1 और X2 दो इनपुट पिन है। ये दो इनपुट पिन क्या है, बेसिकली हम क्या करते हैं, ये X1 है और ये X2 है, X1 एंड X2। यहाँ पर हम एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है, विच जनरेट द फ्रीक्वेंसी। So this crystal oscillator is used to generate the desired frequency, and this desired frequency is applied to this X1 and X2 pins. So crystal oscillator का आउटपुट इन दो पिनों के थ्रू लगाकर ये डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर इसको देते हैं। ठीक है, so this is all about the signals available in your 8085, right? Okay, thank you.